Hello friends, so let's get started with the practical sums of accounting for share capital. So question number 1 that you can see on your screens, right? ABC Limited of ABC Limited company issued 7,50,000 equity shares of rupees 10 each, and the amount thereon was payable as under: rupees 3 per share on application, rupees 4 per share on allotment, and rupees 3 per share on first and final call. As we started in our last session, company can issue shares by such parts, right? Application, allotment, and call money. Company received applications for 7,50,000 शेयर 7,50,000 कंपनी ने इशू करे और उनको एप्लीकेशन भी रिसीव कितने की हुई 7,50,000 की. All the applicants were allotted the shares. Amounts due on allotment and calls were called at appropriate time and were all received on due dates. Pass necessary journal entries in the books of companies. So यहाँ पे in this case we have already received the full amount from all the shareholders. So our journal entries will be quite easy one. See, in our basic class we have already studied the basic journal entries, right? So without wasting any more time, let's start doing the sum. And one more thing, see, the thing is that you are supposed to do what? You are supposed to follow the style in which I am doing the sum. हमें वर्किंग नोट करनी है तो इसी तरीके से वर्किंग नोट करनी है, हम लिख रहे हैं तो इसी तरीके से लिखेंगे. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आप ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना है लिख लो, अपनी मर्जी से जैसे भी करना है कर लो. नॉट दैट वे. यू आर सपोज टू डू इट द वे आई एम डूइंग द सम्स, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी इश्यूड क्या बोला गया है? इश्यूड 7,50,000 shares at rupees 10 each, right? So this is how you are supposed to write. आप लोगों को सबसे पहली चीज़ ये करनी है, the way I am writing you need to understand how am I writing, and in same way you are supposed to write. अब अपने तरीके से आपको नहीं लिखना है. So on application, on allotment, on call, कितने रुपए बोले गए हैं हमें? 3, 4 and 3. So here it is 3, 4 and 3. and receive कितना हुआ है? received भी 7,50,000 शेयर्स पे हुए हैं पैसे, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट, ताकि फिर हमें बार बार क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत ही नहीं ना पड़े कि 3 रुपये थे या 4 रुपये थे, ये था या वो था. ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े. वी जस्ट नीड टू राइट द इंफॉर्मेशन लाइक दिस एंड देन वी आर रेडी टू गो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द सम. जस्ट अ मोमेंट, आई विल जस्ट मेक श्योर कि मैं सारी एंट्रीज यहाँ पे एक ही पेज पे आपको दिखा पाऊँ. So my first entry would be what? Bank account debit 2. किसके पैसे मिले मुझे? एप्लीकेशन के पैसे मिले. इक्विटी शेयर, application account. If you remember, we have studied this in our last session. Same way we are supposed to pass the entries over here, right? So it will be 7,50,000 shares into 3 rupees comes to 22,50,000. 22,50,000. What you are supposed to do is you are supposed to make a proper format of journal entry and then you are supposed to pass the entries, right? I hope you all are clear with the formats of the journal entries. I'm not supposed to teach that. Second entry would be equity share, application account debit 2. Equity share, capital account, correct, same amount 22,50,000, 22,50,000. Chalo, fine. Then third entry would be, I'm writing it over here so that it will be even more clearer. अलॉटमेंट के पैसे, अब पैसे डायरेक्टली मिल जाएंगे? द आंसर इज नो. सबसे पहले क्या करेंगे हम? अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, करेक्ट? सो व्हाट द एंट्री विल बी? व्हाट विल बी द एंट्री? इक्विटी शेयर, allotment account debit 2. equity share, capital account
and 7,50,000 shares into 4 rupees, so comes to 30 lakhs. Correct. Then next, पैसे हमने ड्यू करे, अब लोग हमें पैसे देंगे कि फाइन चलो आपने ड्यू करा है, आप अपने पैसे ले लो. So my entry will be bank account debit as पैसा is coming in, so bank account debit. किसके पैसे आ रहे हैं? अलॉटमेंट के, सो इक्विटी शेयर allotment account, same amount 30 lakhs and 30 lakhs. And on call money also there are 3 rupees and due करेंगे वो. So equity share first and final call account debit to equity share capital account, same 7,50,000 into 3 comes to 22,50,000. एंड पैसे मिल गए हमें, ऐसा बोला ही गया है क्वेश्चन में. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ के मिले हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 22,50,000, 22,50,000. You must have observed one pattern that at the time of application there is bank account का entry first and then the application to share capital वाला entry, and then all other things, be it be allotment or be it be the call money, the entries are same. पहले हम due करेंगे and then we'll get the money. So I hope you all are clear with the very first question of the chapter. Let's start doing next question. Authorized capital of ABC Limited of Himmatnagar was divided into 4 lakh equity shares of rupees 10 each. Out of this, company issued 3 lakh equity shares. जिसका मतलब क्या है? हमें फोकस किसके ऊपर करना है? 4 लाख के ऊपर या 3 लाख के ऊपर? 3 लाख के ऊपर, राइट. सो 3 lakh equity shares कंपनी ने इशू करे ऑफ रुपीज 10 each. 4 on application, 3 on allotment and 3 on final call. कंपनी ने इशू करे, राइट. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 3,60,000 शेयर्स. कंपनी ने इशू करा है 3 लाख और रिसीव कितना हुआ है? 3,60,000 शेयर्स का. केस नंबर 3 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ये तो, राइट. सो एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयर ऑन वाज रिफंडेड. एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर दी और मनी जो पे करे थे वो हमने क्या कर दिए? रिफंड कर दिए. वो लोगों ने जो पैसे दिए होंगे वो हमने क्या करे? रिफंड कर दिए. All the sums due on allotment and final call were received in full except final call on 2,000 equity shares held by आशा. आशा ने शेयर्स जो इशू हेल्ड करे थे 2,000 के, उसके ऊपर उसने क्या किया है? फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं. सो दैट इज़ द ओनली थिंग कि भाई मैंने आपको बोला ही था बेसिक में कि हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, राइट. सो इन दिस केस व्हाट इज़ द थिंग कि भाई हाँ हमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी हुआ और दूसरा क्या, हमें कोई एक शेयर होल्डर ने 2,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं. नाउ द अमाउंट आप समझ लेना एक बार अच्छे से, फिर आई विल बी डूइंग द जर्नल एंट्री. द अमाउंट विच इज कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, हमने कॉल तो कर दिया पर हमें रिसीव नहीं हुआ है, इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स. मानी कि हमें इसका पैसा नहीं मिला है. इसमें जर्नल एंट्रीज जो करनी है वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं. एनीथिंग इज फाइन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप लोग जो भी तरीके से एंट्री करोगे इट इज़ डेफिनेटली बी correct only, and I am going to teach you both the ways by which you can do the journal entry, right. So यहाँ पे पहले तो हम ये क्वेश्चन में से सब कुछ लिख लेंगे as usual. So let's just write it down. Question number 2, issued 3 lakh equity shares at rupees 10 each on application, on allotment, on final call. How much it was? 4, 3 and 3. So 4
3 and 3. Received 3,60,000 shares. करेक्ट. जो हमें रिफंड करनी है दैट इज फाइन, विल मेक एन एंट्री, राइट. एंड कोई आशा नाम की शेयर होल्डर है जिसने कुछ 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल के पैसे नहीं भरे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी पता है, दिस इज द स्टाइल बाय विच यू आर सपोज टू डू इट. यहाँ पे ऑन फाइनल कॉल है ना, वहाँ पे टिक मार्क करो और यहाँ पे 2000 लिख लो. ऐसा ये करा हुआ होगा तो यूल कम टू नो कि अच्छा फाइन ये 2000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, टिक मार्क है, इसका मतलब इसके ऊपर पैसे नहीं मिले हैं. विल मेक आवर ओन वे बाय विच यू आर सपोज टू डू द सम्स, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन में जाके झांकना ना पड़े कि भाई क्या हुआ था, किसने पैसे नहीं दिए थे, किसके ऊपर नहीं दिए थे. अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था ऑन अलॉटमेंट तो यहाँ पे भी मैं टिक मार्क करती. करेक्ट. सो विल डू इट, राइट. चलो, नाउ इन दिस केस my first entry will be, just a moment, yes, my first entry would be, मुझे 3,60,000 के ऊपर पैसे मिले हैं, राइट. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई 3,60,000 के ऊपर मुझे 4 रुपये मिले. एंड वन मोर थिंग कि भाई मुझे जब पैसे मिले होंगे क्या मैं उस टाइम पे क्लियर होंगी कि मुझे ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है. द आंसर इज नो. अभी तो पैसे मिले वो रख लेने, उसके बाद विल रिफंड इट. अभी हमें पता ही नहीं है कि वो ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, अंडर सब्सक्रिप्शन होने वाला है या सेम मनी मिलने वाला है, राइट. तो एज ऑफ नाउ तो जितने मिले उतने ले लो. करेक्ट. सो फर्स्ट विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,60,000 into 4 rupees comes to 14,40,000. This is what I have received so far. Now मैं ये पैसे में से जो एक्स्ट्रा है वो रिफंड कर दूंगी और बाकी के ही रखूंगी, राइट. सो माई एंट्री विल बी लाइक दिस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नो डाउट वो तो होगा ही होगा, पर मुझे रिफंड भी तो करने हैं. सो टू बैंक अकाउंट. अब इसमें कैसे अमाउंट आएगी कि नहीं से 3 लाख की मैंने शेयर कैपिटल इशू करी थी तो उतने पैसे तो मैं रखने वाली हूँ. सो 3 लाख शेयर्स इंटू 4 रुपीज़ कम्स टू 12 लाख. करेक्ट. एंड मैं रिफंड कितने शेयर्स पे करूँगी, 60,000 एक्स्ट्रा मिले है ना यहाँ पे मुझे, राइट. सो 60,000 शेयर्स into 4 rupees comes to 2,40,000 and here it will be 14,40,000. This is how we are supposed to make an entry when we are refunding the money. हम जब क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, तो हम कुछ इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसमें पहले तो हमें पैसे मिलेंगे ही, उसके बाद पता चलेगा कि अरे ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, चलो वापस दे दो शेयर्स. सो विल गिव दैम बैक, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर विद द सेम. लेट्स मूव अहेड विद द थर्ड एंट्री जिसमें हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. सो इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account. अब तो 3 लाख शेयर होल्डर्स है, सो 3 लाख शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ 9 लाख एंड 9 लाख. अब ये तो मुझे पूरे मिल गए, अलॉटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टिक मार्क हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अलॉटमेंट के पैसे वी हैव रिसीव्ड कंप्लीटली. सो माय नेक्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9 lakh and 9 lakh that I have received. Correct. Now next फाइनल कॉल ड्यू तो करना पड़ेगा ना. आशा नाम की शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, पता कैसे चलेगा. सबसे पहले ड्यू करेंगे, फिर पैसे नहीं आएंगे, तब विल कम टू नो कि अच्छा इसने पैसे नहीं दिए. अदरवाइज तो मुझे पता नहीं चलेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल को ड्यू कर लेंगे. सो लेट्स मेक इट ड्यू. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 lakh
into 3, 9 लाख एंड 9 लाख। ना आशा नाम की शेयर होल्डर ने मेरे को पैसे नहीं दिए हैं, राइट। इसका मतलब मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में मेरे हाथ में पैसे आएंगे कितने? कैन आई से 3 लाख में से 2000 तो मुझे माइनस कर देने पड़ेंगे। सो 2,98,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़, करेक्ट? हाँ ना? इज इट completely all right? So here we will receive how much? 2,98,000 into 3, that is 8,94,000. This is one way of passing the journal entry कि भाई जितने रिसीव हुए उतने लिख लो। कितने रिसीव हुए हैं? 2,98,000 शेयर्स पे पैसे रिसीव हुए, उतने लिख लो, बात खत्म कर दो, यहाँ सम ओवर। पर देर इज वन मोर अप्रोच ऑल्सो, जो मैंने आपको बताया, कॉल इन एरियर बोलते हैं उसको, राइट। इन दैट केस माई एंट्री विल बी वॉट? यहाँ पे ध्यान, अच्छे से ध्यान, ऑप्शन में है या ये एंट्री करो या वो एंट्री करो। द एंट्री दैट वी आर गोइंग टू मेक इज वॉट? बैंक अकाउंट डेबिट, डेफिनेटली 8,94,000 ही, क्योंकि मुझे 8,94,000 ही मिले हैं। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितने? 2,000 शेयर्स पे मेरे को 3 रुपये नहीं मिले हैं, तो 6,000, करेक्ट। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 9 lakh. This is how you can pass the entry. By both the ways you can definitely pass the entry. There is nothing wrong in it, either this or that. Any which ways you are going to pass the entry, it is going to be correct only. I hope you all are clear with the sums that we are doing right now, right? Let's move ahead with the next question. Question number 3. Sugar Limited of Nagpur issued 12 lakh equity shares in the public at rupees 10 each. Company received applications for 13,50,000, यानी 1,50,000 shares के application ज़्यादा मिली। Case 3 over subscription हुआ। Excess shares were rejected and amount received were refunded. Definitely fine. Apply allotment first and final call के पैसे मुझे बोल दिए गए हैं कितने हैं। Aishwarya, who was allotted 960 shares, could not pay first call and final call money, where Vinay, who was allotted 1,200 shares, could not pay final call money. Except this, all the sums due from the shareholders were received. Aishwarya and Vinay had paid their arrears amount to the company afterwards. बाद में जाके उन लोगों ने पैसे आके दे दिए कि भाई चलो आपके पैसे रखो, राइट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है वो लिख लें। Question 3. Issued 12 lakh shares at rupees 10 each on application, on allotment, on first call एंड ऑन फाइनल कॉल। कुछ 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं। लेट्स लुक एट इट। 2.5, 2.5, 2 and 3. सो 2.5, 2.5, 2 and 3। रिसीव्ड कितना हुआ है? 13,50,000 शेयर्स पे। फाइन। ऐश्वर्या नाम की शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। कितने शेयर्स पे? 960 शेयर्स पे ऐश्वर्या नाम की शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं 960 शेयर्स पे, राइट। सो आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर 960। और विनय नाम का कोई शेयर होल्डर है जिसने पैसे नहीं दिए हैं 1200 शेयर्स पे। सो 1200 आई विल बी राइटिंग ओवर हियर। आई होप यू गॉट इट, राइट। मुझे फर्स्ट एंड फाइनल दोनों पे 960 शेयर्स पे नहीं मिला तो मैंने टिक मार्क करके ऐसे लिख दिया, और मुझे फाइनल कॉल पे 1200 शेयर्स पे नहीं मिला तो मैंने टिक मार्क करके ऐसे लिख दिया, राइट। सो आई हैव रिटन इट। सब कुछ मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? बस बैठ के जर्नल एंट्रीज पास करनी है, दैट्स ऑल, एंड आई विल बी ओवर। चलो लेट्स डू इट। सो my first entry will be bank account debit
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट। कितने शेयर्स पे मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए हैं? 13,50,000 शेयर्स एट रुपीज़ 2.5 रुपीज़ आई हैव रिसीव्ड, सो 33,75,000, करेक्ट। अब मुझे एक्सेस मनी तो रिफंड करनी ही है तो वो कर लेंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 33,75,000, that is okay. 2 equity share capital account 12 lakh। क्यों 12 lakh? यहाँ पे 12 lakh ही तो इशू करे तो उतने ही होते हैं, राइट। 12 lakh इंटू 2.5, करेक्ट। सो इट इज 30 lakhs एंड 2 बैंक अकाउंट रिफंड कर दो भाई बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो। So 1,50,000 into 2.5, 3,75,000, 3,75,000. This is how we are supposed to pass the entry. कुछ इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। Then थर्ड एंट्री सिंपल अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है और उसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो लोगों ने पैसे भी दे दिए हैं। सो equity share allotment account debit to equity share capital account 12 lakh into 2.5 comes to 30 lakhs, करेक्ट। एंड उसके ऊपर तो पैसे भी मिल गए हैं, सो लेट्स पास इट। बैंक अकाउंट डेबिट to equity share allotment account 30 lakhs and 30 lakhs, करेक्ट। नाउ फर्स्ट कॉल पे भाई यहाँ टिक मार्क से पता तो चल रहा है कि 960 के ऊपर पैसे नहीं मिले, पर ड्यू तो करो। यू नीड टू फर्स्ट ड्यू द कॉल्स एंड देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई पैसे मिले कि नहीं मिले, राइट। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक द एंट्री फॉर पेमेंट ड्यू, करेक्ट। हमारे यहाँ बिल आता है तो पहले ड्यू अमाउंट लिख के आती है ना, बिल देख के ड्यू अमाउंट देख के फिर हम पे करते हैं ना, सेम वे यहाँ पे ड्यू हुआ है वो उसकी एंट्री हमें पास कर लेनी है। सो माई एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? Definitely 12 lakh into 2 rupees 24 lakhs। इतना ड्यू तो हुआ, चलो पैसे नहीं मिले वो अलग बात है, राइट। कॉल्स इन एरियाज बनाए तो देयर विल बी कॉल्स इन एरियाज का एंट्री, एंड इफ यू आर डूइंग इट डायरेक्टली तो कुछ इस तरीके से एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर first call account 12 lakh minus 960 into 2, correct। It has to be 23,98,080। सीधी बात है ना यार। और मैं अगर कुछ इस तरीके से लिखूँ कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट 23,98,080, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 960 इंटू 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, देन ऑल्सो इट इज ओके। चलो फाइन। देन भले ही उसने मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, पर मुझे अभी भी ड्यू तो पैसे करने ही पड़ेंगे कि भाई तेरे फर्स्ट कॉल के तो बाकी रखे ही है तूने, पर यार तेरा अब तो तेरा फाइनल कॉल भी ड्यू हो गया है, प्लीज़ क्विकली पे कर मेरे को तू आके, ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा उसको, हाँ ना। सो माई नेक्स्ट एंट्री विल बी फाइनल कॉल ड्यू की इक्विटी शेयर। आप लोग याद करो, हम लोग पे नहीं करते कोई, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट मंथ का पे नहीं किया है तो ये महीने बिल तो आएगा ही लास्ट महीने का और ये महीने का टोटल करके, कुछ अमाउंट कुछ लिमिट तक तो वो लोग देंगे हमें टाइम, फिर दिल कट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। मोबाइल बिल है तो दिल कैरी फॉरवर्ड द अमाउंट फॉर सम 2 or 3 months एंड देन दिल
just stop the services, right? So here my entry will be equity share final call account debit to equity share capital account. मुझे ड्यू तो सभी के लिए करना है, सो 12 लाख इंटू 3 रुपीज़ 36 लैक्स, करेक्ट। मुझे पैसे कितने के ऊपर नहीं मिले हैं? 960 शेयर्स के ऊपर एंड 1200 शेयर्स के ऊपर सो कुल मिला के मुझे कुछ 2160 शेयर्स के ऊपर पैसे नहीं मिले हैं, राइट। 2160 शेयर्स पे मुझे इसके 3 रुपये नहीं मिले हैं। सो माई एंट्री विल बी समथिंग लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने? ये भाई 12 लाख जो थे ना मेरे, उसमें से 960 भी माइनस करो और ये 1200 भी माइनस करो। ऐश्वर्या और विनय दोनों ने मेरे को पैसे नहीं दिए हैं, तो वो दोनों माइनस कर दो इनटू 3 रुपीज़। डू इट क्विकली, you will get 35,93,520, 35,93,520 जितना हमें रिसीव हुआ। अब चलो ये तो यहाँ ख़त्म हो गया है, पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ऐश्वर्या और विवेक या विनय वट एवर द नेम इज, दोनों मुझे बाद में आके तो पैसे देके जा रहे हैं। इन दिस केस माई एंट्री विल बी लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने थे फर्स्ट कॉल पे पैसे? 960 थे, ये रहे यहाँ पे लिखे हुए ही है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो कितने मिले हमें? 960 इंटू 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट मिल गए ना, दोनों के मिल गए। 1200 प्लस 960 दोनों ने दे तो दिए हैं। सो 1200 प्लस 960 2160 इंटू कितना 3, इतने पैसे आई हैव रिसीव्ड। इतना इसका इट विल बी 1920 और इसका इट विल बी 6480, करेक्ट। कहाँ से आए ये पता चल रहा है ना, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, राइट। ऐश्वर्या एंड विनय, राइट, दोनों के 1200 एंड 960 दोनों पे हमने अब पैसे रिसीव कर लिए हैं। सो माई एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल, जितने मिले उतने। सो टोटल विल बी 8400 दैट आई हैव रिसीव्ड। And now my sum is over. Most of the students are tend to do the mistake कि वो 8th एंट्री करने के बाद सम फिनिश कर देते हैं assuming कि नहीं चलो ये हो गया, पर हमें एक एंट्री दी हुई है, रादर एक लाइन दी हुई है क्वेश्चन में, and that is the very important line over here, and that is this. Aishwarya and Vinay had paid the arrears amount to the company afterwards. इसका मतलब ये दोनों ने उनके जो पैसे थे वो afterwards हमें लौटा दिए हैं, कंपनी को दे दिए हैं, and that is why this entry is must. ये एंट्री एकदम कंपलसरी है, करनी ही पड़े, otherwise you will get your 1 or 1.5 marks cut. So better you do the entry, right? I hope you all are clear with the amount when we are not receiving, when we are receiving it again, and over subscription. So in our next class we are going to start with some more sums. Thank you.